We have seen a lot of parts from antibiotics. The remaining part we'll see today. One antibiotic is remaining from your antibacterial drug, which inhibit the protein synthesis. So we have seen that tetracyclines, macrolides, aminoglycosides. Okay, all these antibiotics they inhibit the protein synthesis, and one more there, one more antibiotic is there, which also inhibit the protein synthesis. So we'll see that, and after that we'll see drug used in the tuberculosis and leprosy. We'll see about the chloramphenicol antifungal drugs we will take later. So chloramphenicol is also again a broad spectrum antibacterial agent. Broad spectrum. It is again a broad spectrum antibacterial agent. Chloramphenicol. Chloramphenicol. It is also known as, remember, it is also known as chlormycetin. It is also known as a chlormycetin. यहाँ पे मेंशन नहीं है बट इट इज आल्सो नोन एज अ क्लोरमाइसेटिन chloramphenicol or chlormycetin. So it is a broad spectrum antibiotic. It is obtained from again Streptomyces venezoli. It is obtained from Streptomyces venezoli. Remember the source. Source is important. Okay, chloramphenicol is again a broad spectrum antibiotic obtained from Streptomyces venezoli. Now it is commercially obtained totally, which is now commercially available chloramphenicol. There is totally obtained from synthetic origin. So आजकल जो chloramphenicol मिलता है, it is made by synthesis in your chemical laboratory. First time it was isolated from Streptomyces venezoli. Now commercially obtained from synthetic origin. Okay. Now it is again a broad spectrum antibiotic like that of your tetracyclines. Spectrum is similar to tetracyclines. Now mechanism of action of this chloramphenicol. जैसे मैंने बोला कि ये एक और एक एंटीबायोटिक है जो आपके प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है. इसके मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है और सोर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है. सो सोर्स याद रखो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली and spectrum is similar to tetracyclines. So it again is it this is again one more example of protein synthesis inhibitor. So chloramphenicol gets readily penetrated into bacterial cell wall and acts by interfering the synthesis of bacterial protein by binding to a 50s ribosomal subunit. तो ये क्या करेगा, तो याद रखो 50s राइबोसोमल सबयूनिट को बाइंड करेगा. सो ऐसे आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड्स करता है. Aminoglycosides. Okay, aminoglycoside in this. So they were used to so this chloramphenicol it binds to a 50s ribosome after getting entry into bacterial cell. ये बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद 50s राइबोसोम जो है एक्टिवली डिवाइडिंग बैक्टीरिया, जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बैक्टीरिया का, वहां पे जाके सेल के अंदर जाएगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर 50s राइबोसोमल सब यूनिट को बाइंड करेगा एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करेगा. It inhibit the protein synthesis. Interferes the transfer of elongating polypeptide chain. It is inhibitor of dipeptidyl transferase. So the dipeptidyl transferase enzyme जो होता है, okay, dipeptidyl transferase जिसमें that is the enzyme required for attachment of amino acid to a new growing peptide. तो वो एंजाइम को इनिबिट करता है. सो इट इज इनिबिटर ऑफ डायपेप्टिडिल ट्रांसफरेज. प्रोटीन सिंथेसिस में जो एंजाइम होता है डायपेप्टिडिल ट्रांसफरेज उसको इनिबिट करेगा. ओके, so it binds with the 50s ribosomal subunit of bacteria after getting entry into the bacterial cell wall and inhibit the protein synthesis. It is a particularly inhibitor of dipeptidyl transferase. It prevent the attachment of amino acyl tRNA to the newly synthesized growing polypeptide chain. So जो polypeptide chain grow हो रहा है तो उसको नया अमीनो एसिड अटैच होने से बचाएगा. So in high dose it can inhibit the mammalian mitochondrial protein synthesis as well as bone marrow. So this chloramphenicol normally in a therapeutic dose will not affect the mammalian cell. ये जो normal डोज दिया जाता है उसमें तो वो ये सिर्फ बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करता है. बट इफ यू इंक्रीज द डोज इन अ हाई कंसंट्रेशन इट कैन इनिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियल सेल में प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट कर सकता है एंड पर्टिकुलरली बोन मैरो सेल्स दे आर susceptible to this antibiotic, and that's why that is the one of the reason this chloramphenicol is a bone marrow suppression, क्योंकि ये वहाँ पे इनिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस. सो bone marrow suppression is the adverse effect. So ये बाद में आएगा आपको. So in the high dose it can inhibit the
mammalian mitochondrial protein synthesis as well as bone marrow cells. Now resistance to this chloramphenicol develops due to decreased permeability to the antibiotic in the bacterial cell. Bacteria will develop some alternate decreased permeability, mostly because of the genetic origin. So they will change the genetics of bacteria. Bacteria will change its own DNA and will make changes in the cell wall. Such changed cell wall is not permeable to chloramphenicol and shows cross resistance to tetracyclines. मतलब क्या, अगर क्लोरोम्फेनिकॉल को रेजिस्टेंस है तो टेट्रासाइक्लिन्स को भी resistance आ जाएगा. Cross resistance means if particular class of antibiotic is resistant, if microbes are resistant to a particular class of antibiotic, all members of same family they will be resistant. So it shows cross resistance to the tetracyclines. If tetracyclines are resistant to some infection, that means क्लोरोम्फेनिकॉल इज आल्सो रेजिस्टेंस. अगर क्लोरोम्फेनिकॉल को रेजिस्टेंस है तो टेट्रासाइक्लिन को ऑटोमेटिक है, ऐसा होता है. दैट इज नोन एज अ क्रॉस रेजिस्टेंस. ओके, तो याद रखो ये बोन मैरो हायर कॉन्सेंट्रेशन में बोन मैरो को सप्रेस करेगा, मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा. बट इन द थेराप्यूटिक डोसेज ओनली इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है बाय बाइंडिंग विद द 50S राइबोसोम. इट इज अ इनहिबिटर ऑफ डाइपेप्टिल ट्रांसफरेज. रिमेंबर ये मैकेनिज्म याद रखो उसका. तो दो तीन पॉइंट मैकेनिज्म में it will bind to a 50S ribosome and inhibit the protein synthesis. It will interfere the transfer of elongating polypeptide chain to a newly attached amino acid tRNA in the ribosomal complex. So it is an inhibitor of dipeptidyl peptidase enzyme. In high concentration, it can inhibit the protein synthesis of mitochondrial mammalian cells, and it has a cross resistance to tetracyclines. So those are the very important points. इसके बाहर ज़्यादा कुछ important नहीं इसमें. Then absorption, distribution, metabolism, elimination. So unlike tetracyclines, मतलब क्या, unlike मतलब tetracyclines में क्या होता है कि absorption complete नहीं होता है. But unlike tetracycline के जैसे नहीं. So unlike tetracycline, it is completely absorbed from your GIT. Blood levels after oral administration is higher than intravenous level because of the hydrolysis of salt in the gut. Okay, decrease in the particle size increases the absorption of chloramphenicol up to 60%. Okay? Sorry, increases the rate of absorption. तो जिसका chloramphenicol का particle size जितना decrease होगा उतना absorption बढ़ेगा. After absorption, the chloramphenicol is 60% bound to plasma protein. Now it is distributed in the various body fluids, like it is distributed in the CSF, it is distributed in the CSF, bile, then it can cross the blood-brain barrier and placental barrier. That's why it can be teratogenic drug. जो placental barrier क्रॉस करते हैं दे आर द पोटेंशियल टेराटोजेनिक ड्रग. याद रखो, जो भी placental barrier क्रॉस करेगा, जैसे प्रेग्नेंट वुमन में दे दिया, so if it can get access to a fetus circulation, that is known as a, it can, that is nothing but it can cross the placental barrier, and if any drug crosses the placental barrier, so that drug will show its action as well as its adverse effect on fetus also. That's why it is a potential teratogenic drug. Now chloramphenicol palmitate, it is a prodrug. इसका ईस्टर होता है क्लोराम्फेनिकॉल, ईस्टर ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल, दैट इज अ क्लोराम्फेनिकॉल palmitate. वो palmitic एसिड के साथ में क्लोराम्फेनिकॉल का ईस्टर बनाएंगे. That is the prodrug and which is active in vivo. Okay, gets hydrolyzed in presence of pancreatic lipase and then it is active in vivo. As such, it is inactive. ये prodrug है क्लोराम्फेनिकॉल palmitate. As such, it is inactive. Okay, in vivo. अंदर आप ये जब उसका ब्रेकडाउन होगा पाल्मिटिक एसिड बाल निकल जाएगा साइड में और क्लोराम्फेनिकॉल का मॉइटी जब होगा, सो दैट विल शो द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो ब्रेक करेगा इसको और बाद में एक्टिव ड्रग रिलीज होगा और वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देगा. इट इज एक्टिवेटेड बाय हेपेटिक कॉन्जुगेशन रिएक्शन. इट इज इनएक्टिवेटेड. ये मेटाबोलाइज कैसे होता है? फेज सेकंड मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है. इट इज इनएक्टिवेटेड, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय hepatic gluco, okay, hepatic glucourinide conjugation and it is excreted in the urine. क्या है इसमें? इसका मेटाबॉलिज्म होता है फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म. there is a glucourinide conjugation. It is inactivated, it's metabolized by phase second metabolic reaction, that is known as glucourinide conjugation. Okay, so this is nothing but the absorption, distribution, metabolism and elimination of this and excreted in the kidney. It's excreted by the किडनी इन द यूरिन. तो ये यहाँ पे इतना याद रखो कि उसका मैकेनिज्म क्या है, सोर्स क्या है
उसका मैकेनिज्म क्या है, सोर्स क्या है, और उसमें जो प्रोडक्ट बोला है वो प्रोडक्ट, ओके। और बाद में मेटाबॉलिज्म फेज सेकंड रिएक्शन, ग्लूकोयूरोनाइट कॉन्जुगेशन। नाउ नेक्स्ट इज नथिंग बट द एडवर्स रिएक्शंस ऑफ दिस। एडवर्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका, इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट, ड्रग एलर्जी और एलर्जिक रिएक्शंस। सो इट इज अनकॉमन, ओके, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होता है, रेयरली मिलता है। स्किन रैश, ड्रग फीवर, एंजियोन्यूरोटिक इडेमा, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस और एट्रोपिक ग्लोसाइटिस। ये टर्म्स का आपको मीनिंग मालूम नहीं तो मैं बोल दूंगा आपको, डोंट वरी। स्किन रैश मतलब कि आपके स्किन के ऊपर रैश हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, रेडनेस या प्रोराइटिस हो जाएगा, दैट इज स्किन रैश। ड्रग फीवर मतलब ये ड्रग फीवर मतलब ये ड्रग का ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको फीवर आ जाता है। सो इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर टेकिंग दिस एंटीबायोटिक, दैट इज अ ड्रग फीवर, ओके, ड्रग फीवर। एंजियोन्यूरोटिक एडिमा मतलब क्या कि आपका स्वेलिंग हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा। एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस मतलब आपके स्किन में क्या होगा, आपका स्किन निकल जाएगा, ठीक है। एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस मतलब जो आपके डर्मिस है स्किन के ऊपर का, उसका लेयर निकल जाएगा, दूसरा लेयर आएगा। सो एट्रोपिक ग्लोसाइटिस मतलब ये, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस मतलब ये आपका गले में भी इंफ्लेमेशन करेगा, सही करेगा, अल्सरेशन। नाउ नेक्स्ट इज अ बोन मैरो टॉक्सिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोन मैरो टॉक्सिटी। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, बोन मैरो टॉक्सिटी, क्लोरामफेनिकोल कैन कॉज ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया, इसको याद रखो, ए प्लास्टिक एनीमिया, क्लोरामफेनिकोल कॉजेज ए प्लास्टिक एनीमिया। इट इज अ काइंड ऑफ इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, then agranulocytosis and thrombocytopenia. So it causes the aplastic anemia. ये important है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, okay. What is the adverse effect of chloramphenicol on bone marrow? So it can cause aplastic anemia, then thrombocytopenia, agranulocytosis. aplastic anemia मतलब इसमें क्या है कि जो इंटीग्रिटी होता है आरबीसी का वो लॉस हो जाता है, ए प्लास्टिक एनीमिया, उसकी वजह से आरबीसी इज नॉट एबल टू कैरी द ऑक्सीजन, ए प्लास्टिक एनीमिया। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ग्रेनुलोसाइट्स जो है उसका लेवल कम हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट, दैट इज अ ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, बोन मैरो के टॉक्सिटी क्या है, ए प्लास्टिक एनीमिया, दूसरा क्या है टॉक्सिटी, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम मतलब क्या, ग्रे मतलब क्या, ग्रे कलर का, बेबी मतलब क्या, बच्चा, सिंड्रोम, ठीक है। तो क्या होता है, इट्स अ फेटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लोराम्फेनिकोल विद अ हाई मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ये इसके इसके कारण बहुत सारे बच्चे का डेथ हो चुका है। आफ्टर अ फर्स्ट डोज ऑफ क्लोराम्फेनिकोल इनिशियल सिम्टम्स स्टार्ट लाइक वोमिटिंग, lethargy, anorexia, abdominal distension, irregular respiration develops। ये बच्चों में होता है, okay, ग्रे बेबी सिंड्रोम। So what happens, the skin of your baby will become totally gray, okay। इससे होता है कि after 24 hours condition gets worsen leading to hypothermia, flaccidity, peripheral vascular collapse, साइनोसिस। साइनोसिस मतलब absence of ऑक्सीजन, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, absence of ऑक्सीजन, शॉक एंड फाइनली डेथ। तो ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन ये क्या करेगा आपके पल्मोनरी, ओके, सो आपको पल्मोनरी इडिमा करेगा, एनजी, ओके, सो एंजियोटिक इडिमा। उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है लेवल वो कम हो जाएगा बॉडी में, दैट्स व्हाई इट विल बिकम a gray, okay, the skin of baby will become gray, that's why it is known as a gray baby syndrome। finally finally respiratory depression हो जाएगा and baby मर जाएगा। so gray baby syndrome, so it is a fatal complication, याद रखो, gray baby syndrome इसका, gray baby syndrome fatal complication, fatal मतलब मौत भी हो सकती है। fatal complication of chloramphenicol with a high mortality rate। after first dose of chloramphenicol initial symptoms start like vomiting, lethargy, anorexia, abdominal distension and irregular respiration। irregular respiration, respiration क्या होगा, कम हो जाएगा, उसमें respiration कम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, साइनोसिस हो जाएगा। साइनोसिस मतलब देखो आप अगर हाथ जो है आपका, जो पाम होता है आपका, उसमें अगर आपने वहां पे जो आर्टरी सप्लाई करता है उसको होल्ड करके रखा पैक टाइटली, तो आपका स्किन जो है वो ब्लू कलर का दिखने लगता है, दैट इज साइनोसिस, दैट इज साइन ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस हो जाएगा, वो बाद में उसका हाइपोथर्मिया, पेरिफेरल वैस्कुलर कोलैप्स एंड इट विल लेट साइनोसिस, ग्रे साइनोसिस, एंड दैट इज नोन एज अ ग्रे बेबी सिंड्रोम। उसका स्किन जो है पूरा ग्रे हो जाता है, ग्रे कलर का, बिकॉज ऑफ द inadequate supply of oxygen।
So gray baby syndrome. Finally, the baby will die. It is because of the first. ये क्यों होता है? There is a reason. Deficient conjugation of chloramphenicol in the liver. Deficient conjugation of chloramphenicol in the liver. And we have seen chloramphenicol is metabolized by फिर second metabolic reaction, that is a conjugation reaction. अभी देखो बच्चों में क्या होता है कि जैसे बच्चा होता है, so in case of remember in case of pediatric patient and in case of geriatric patient, pediatric patient मतलब क्या बच्चे, तो बच्चों में क्या है कि पूरा उसका डेवलप नहीं होता. ओके, सो जैसे बच्चों में क्या है कि पूरा उसका जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डेवलप जल्दी नहीं होता, उसको टाइम लगता है. ओके, सो इन द इन्फेंट्स एंड इन द चिल्ड्रंस देयर इज नो फुल मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ लिवर. तो उसमें लिवर पूरा मैच्योर नहीं होता है, उसमें किडनी पूरा मैच्योर नहीं होता है बच्चे में. Okay, so that's why babies or childrens will have less capacity to metabolize this chloramphenicol. So there कभी-कभी तो किसमें एंजाइम डेवलप भी नहीं होता है. So there is a deficiency or inadequate development of that glucuronide conjugation reaction in the baby's liver or in the children's liver. So their liver is not fully developed. So that's why deficiency of conjugation in the chloramphenicol. Deficiency डिफिशिएंट कॉन्जुगेशन ऑफ क्लोराम्फेनिकोल इन द लीवर. जो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है क्यों होता है? फर्स्ट, डिफिशिएंट कॉन्जुगेशन ऑफ क्लोराम्फेनिकोल इन द लीवर. सेकंड, इमेच्योरिटी ऑफ renal tubules इन द infants leading to impairment of excretion in the cerebrum. मतलब क्या, ये दोनों सेम ही है. देखो बच्चों में क्या है कि बच्चों में पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है, अंडर डेवलपमेंट होता है. सो उनका लीवर पूरा डेवलप नहीं होता है और किडनी भी डेवलप नहीं होता है पूरा. सो लीवर नॉट बिकॉज liver insufficient development of liver, there is a deficient conjugation of chloramphenicol in the liver first, and because of the not full development of kidney, immaturity of renal tubules, that is a not kidney is not developed full. What happens? Leading to impairment of excretion of drug in the cerebrum. So ये जो chloramphenicol है वो excrete कहाँ से होता है? यूरिन से होता है. अगर बच्चे जो होते हैं, बच्चे में लिवर का कैपेसिटी भी कम होता है और किडनी का कैपेसिटी टू एक्सक्रीट द ड्रग वो भी कम होता है. बिकॉज ऑफ दैट दे डेवलप अ ग्रेवी बेबी सिंड्रोम. सो ये सिर्फ बच्चों में ही होता है. सो बिकॉज ऑफ द deficient conjugation of chloramphenicol in the liver and immaturity of renal tubules means inadequate development of kidney in the infants leading to impaired excretion of drug in the free form. That's why gray baby syndrome is there in case of children. नाउ ओल्डर एज जो जेरियाट्रिक पेशेंट होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उसमें भी क्या होता है? ये आप बोलेंगे सर उनमें तो डेवलप ऑलरेडी हो चुका है. यस, ऑब्वियसली उनमें ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, बट ड्यू टू एजिंग प्रोसेस तो उनका जो कैपेसिटी होता है वो कम हुआ होता है. सो ड्यू टू एजिंग प्रोसेस द कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज द ड्रग इन द ओल्ड पीपल और जेरियाट्रिक पेशेंट, so it is a decreased. In case of geriatric patient, again the functional capacity of your kidney is also decreased due to aging. जैसे कोई हट्टा कट्टा यंग आदमी है, उसका जो लीवर का कैपेसिटी होता है वो पीक पे होता है, वो उसका ज्यादा लीवर का कैपेसिटी होता है. जो बच्चा होता है उसका डेवलप ही नहीं हुआ होता है. ठीक है, और जो बूढ़ा होता है उनका कैपेसिटी डेवलप तो हो चुका होता है, लेकिन अभी उसका एजिंग की वजह से उसका कैपेसिटी कम कम होने लगता है. ओके, सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ जेरियाट्रिक पेशेंट एंड पीडियाट्रिक पेशेंट ए डोज एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. तो ऐसा नहीं कि जो आपको नॉर्मल डोज दिया जाता है वही डोज बच्चों को देंगे और या फिर वही डोज बूढ़े आदमी को देंगे. ठीक है, सो डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना है, उसका कैपेसिटी कितना है, उसका फंक्शनल इंटीग्रिटी कितना है. ओके, सो ये सब कंसीडर करके ही डोज एडजस्ट करते हैं. ओके, सो रिमेंबर बोन मैरो सप्रेशन, so that is a aplastic anemia is the toxicity of your chloramphenicol. Then gray baby syndrome. Okay, gray baby syndrome, that's why chloramphenicol is not given in case of infants, it is contraindicated. Okay, so gray baby syndrome. Then CNS के ऊपर toxicity क्या होगा? headache, peripheral neuritis, peripheral nerve का inflammation, then internal, okay, ophthalmoplegia, mental confusion, depression, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक नर्व को भी इंफ्लेमेशन करेगा, कैन कॉज कॉक्लियर डैमेज, कॉक्लियर नर्व डैमेज. सीएनएस के ऊपर भी उसका टॉक्सिटी है. सो पेरिफेरल न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, देन कॉक्लियर नर्व डैमेज, ओके, मेंटल कंफ्यूजन, डिप्रेशन, दीज आर द सीएनएस एडवर्स इफेक्ट. तो एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है. देन मिसलेनियस एडवर्स इफेक्ट, टाइफाइड शॉक सिंड्रोम में डेवलप इन पेशेंट हैविंग टाइफाइड फीवर विद द क्लोराम्फेनिकोल. कि अगर chloramphenicol, it was a drug of choice, it is not nowadays,
इट वॉज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ टाइफाइड फीवर। पहले जमाने में ये, पहले जब एंटीबायोटिक नहीं थे ज्यादा, तो टाइफाइड फीवर में क्लोराम्फेनिकोल वाज अ ड्रग ऑफ चॉइस। सेफ्ट्राक्सोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ टाइफाइड फीवर। सेफ्ट्राक्सोन अभी कौन सा है, सेफ्ट्राक्सोन। तो टाइफाइड फीवर में पहले ये ड्रग दिया जाता था, कौन सा, क्लोराम्फेनिकोल। So at that time, what was happening? So typhoid shock syndrome may develop in the patient having typhoid fever and treated with the chlorphenicol. So that is a miscellaneous. तो यहाँ पे एलर्जी रिएक्शन होगा बोन मैरो सप्रेशन में, ए प्लास्टिक एनीमिया, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। सीएनएस के ऊपर न्यूरोटॉक्सिटी, जो ऑप्टिक न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस एंड कॉक्लियर फंक्शन डैमेज, ओके, याद रखो। डिप्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन, टाइफाइड शॉक सिंड्रोम डेवलप हो सकता है इन केस ऑफ टाइफाइड फीवर। These are the adverse reaction, very very important, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है याद रखो, ड्यू टू metabolism of chloramphenicol is happens in the second phase of metabolic reaction. That is the phase second reaction is glucouronide conjugation, जो कि बच्चों में डिफिशिएंट होता है और किडनी का कैपेसिटी भी कम होता है बच्चों का, क्योंकि डेवलप नहीं हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डेवलप ग्रे बेबी सिंड्रोम। नाउ therapeutic uses of this chloramphenicol, it is used for the similar kind of indications as that of the tetracycline. So it is used for similar purpose as that of the tetracycline. It should be restricted for the treatment of salmonella typhi and paratyphi. So ये जो drug है, it is only nowadays restricted for the treatment of typhoid fever, salmonella typhi and paratyphi. Well, now typhoid fever में क्या है, typhoid fever chlorphenicol was a drug of choice. मैंने बोला आपको पहले, chlorphenicol was a drug of choice until 1980. Ceftriaxone is a drug of choice in case of typhoid fever. क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो until पुराने जमाने में ये ड्रग ऑफ चॉइस था टाइफाइड फीवर until 1980. Nowadays ceftriaxone is a drug of choice. Other drug used in the treatment of typhoid fever are nothing but the quinolone antibiotics like ciprofloxacin, then clotrimazole, ampicillin, ampicillin, and third generation cephalosporin. Then chloramphenicol is also useful in the treatment of hemophilus influenza meningitis. Hemophilus influenza इसकी वजह से अगर meningitis हो गया तो उसमें rickettsial infection, anaerobic infection. It is also useful in the brucellosis, plague, chronic diarrhea, urinary tract and ocular infection, UTI and ocular infection. These are the uses of chloramphenicol. Some okay. So summary यहाँ पे major classes of protein synthesis, major classes of antibiotic that inhibit the protein synthesis. Okay, major classes of protein synthesis inhibiting antibacterial drug. तो ये हो गया आपका फाइनल, okay, ये हो गया फाइनल 70s initiation, 70s complex, 70s initiation complex for protein synthesis. बैक्टीरिया में 70s होता है और ह्यूमंस में 80s होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि बैक्टीरिया में जो होता है राइबोसोम्स वो 70s राइबोसोम होता है, उसमें 50s एंड 30s ऐसे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे सब यूनिट। और ह्यूमंस में क्या होता है कि 80s होता है, ओके, 60s एंड 30s, ओके, ऐसा। सो इन द बैक्टीरिया this chloramphenicol macrolides and lincomycin, chloramphenicol macrolide antibiotic and lincomycin, they binds to 50s ribosomal subunit and prevent the peptide bond formation and stop the protein synthesis. तो अमीनो ग्लाइकोसाइड क्या करेंगे, अमीनो ग्लाइकोसाइड they binds to 30s ribosomal subunit and prevent the protein synthesis and they causes misreading, okay, misreading of mRNA strand, impair of proofreading resulting into production of faulty protein. ये हो चुका है। Then tetracyclines they also bind to 30s ribosomal subunit, block the binding of tRNA, thereby inhibiting the protein synthesis. तो यहाँ पे याद रखो जो बड़ा वाला पार्ट होता है आपका, ये बड़ा वाला 50s राइबोसोम होता है, छोटा वाला 30s राइबोसोम होता है। 30s राइबोसोम के ऊपर कौन कौन एक्ट होता है, ये दोनों अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स, दे बाइंड्स टू 30s राइबोसोम। 50s राइबोसोम को बाइंड कौन करता है, क्लोराम्फेनिकोल, macrolide antibiotics, lincosamides, they binds to 50s ribosomal subunit. Okay, याद रखो, it is a summary. So drug used in the tuberculosis, leprosy. So first of all, tuberculosis is the one of the most deadliest disease. So it is the second topmost disease, infectious disease. ये second topmost infectious disease that causes millions of death in the Asian countries like India, China, then some part of your
रशिया, इंडिया, चाइना, रशिया, ये कंट्रीज में ट्यूबरकुलोसिस is an infectious disease caused millions of death. It is the second topmost infectious disease. फर्स्ट वाला कौन है? फर्स्ट टॉपमोस्ट कौन है इन्फेक्शियस डिसीज? दैट इज नोन एज HIV, एड्स। एड्स क्या है? फर्स्ट है। ये ट्यूबरकुलोसिस क्या है? सेकंड है। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय सेवरल स्पीसीज। तो इसमें दो चार स्पीसीज होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है। सो टू आर मोस्ट कॉमन, दैट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस and Mycobacterium bovis. These are the two most common form of your mycobacteria which causes the infection known as a tuberculosis. Tuberculosis. Okay, Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis. दो microorganism. There are several species of mycobacteria, but these two are most common to cause this tuberculosis. Tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस नाम क्यों दिया इसको? ट्यूबर मतलब क्या? जैसे आपका ट्यूबर मतलब एक छोटा सा गांठ होता है, गांठ। ट्यूबर मतलब क्या? जैसे ऑनियन है, ऑनियन। आपका जो कांदा होता है, कांदा क्या है? इट इज अ ट्यूबर। ठीक है, इट इज अ ट्यूबर। उसके बाद में आपका लहसुन हो गया, वो क्या है? इट इज अ ट्यूबर। गार्लिक, इट इज ट्यूबर। सो ट्यूबरक्लोसिस, इट इज अ इन्फेक्शन ऑफ स्किन, इट इज इन्फेक्शन ऑफ, sorry, primarily it is infection of your respiratory tract. Okay, so there is a formation of tubercle at the site of infection. That's why it is known as tuberculosis. It is an infectious disease caused by several species of mycobacteria known as Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis. Okay, it is an acid-fast bacteria. It is an acid-fast bacteria. It is not easy to isolate this bacteria. It is not easy to develop the culture of this bacteria. So it is an acid-fast bacteria. The disease is, this disease was also described in the Veda. जो वैदिक लिटरेचर था अपना, जे वेद असतात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये वेदामध्ये पण याचं डिस्क्रिप्शन आहे. सो इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन द वेदास by Charaka and Sushruta. By Charaka and Sushruta, it is described as a king of disease. It is described as a king of disease. It was named here, this king of disease. Now tubercular bacillus. Okay, Mycobacterium tuberculus or tubercular bacillus was isolated or was found by Robert Koch in 1982. तो इसने क्या किया था? ट्यूबरकुलर बेसिला उसने फाउंड किया था। इट वाज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ये किसने बोला है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? रॉबर्ट कॉक in 1882 discovered the tubercular bacilli, which is a causative organism for tuberculosis. The tuberculosis is caused by acid-fast bacilli known as a Mycobacterium tuberculosis or Mycobacterium bovis. So these are the two strains. There are several species of mycobacteria which can cause tuberculosis. It is a king of disease described in the Vedas. We'll see one by one. Mycobacteria, typically there are some few characteristics of mycobacterium. ये mycobacterium मतलब जो है वो, it is not easy to treat the mycobacterium infection. Tuberculosis is not easy to treat. There are certain reasons behind this कि tuberculosis का ट्रीटमेंट उतना easy नहीं होता है, वो बहुत ही टेढ़े से लंबा प्रोसेस चलता है tuberculosis का ट्रीटमेंट के लिए। बिकॉज ऑफ द सर्टन रीजन, माइकोबैक्टीरिया जो है, माइकोबैक्टीरिया टिपिकली लो वायरुलेंस मतलब क्या है? माइकोबैक्टीरिया टिपिकली विल हैव लो वायरुलेंस। लो वायरुलेंस मतलब ये जल्दी इन्फेक्शन नहीं करेगा, तो उसका इन्फेक्शियस पावर जो है वो कम है। सो उसकी वजह से वो जल्दी कैच नहीं कर सकते अपने उसको। माइकोबैक्टीरिया हैव लो वायरुलेंस, okay, that can cause chronic disease and usually resistant to therapy. एक बार हो गया तो रेजिस्टेंस टू थेरेपी, ये क्रोनिक डिसीज कर सकता है। क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस, दे कैन कॉज क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस एंड बिकॉज ऑफ इट हैज अ लो वायरुलेंस, जल्दी मल्टीपल नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो उसका मल्टीप्लाई होने का टाइम भी 1 to 2 days है। बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई इन 1 or 2 days, इट विल नॉट मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंटली जैसे अदर इन्फेक्शन होता है। जैसे बाकी कुछ आपका निमोनिया हो गया या फिर आपका कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, उसमें एंटीबायोटिक इफेक्टिव होता है। Antibiotics are effective in case of other infection because they are very effective because there is a rapid multiplication of positive organism. तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो रैपिड मल्टीप्लाई करता है। so, जैसे एक दिन में ही वो बहुत सारे कॉलोनीज बनता है, बहुत सारे कॉलोनीज। बट दिस माइकोबैक्टीरिया हैज अ लो वायरुलेंस, ये जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होता, वो मल्टीप्लाई के लिए टाइम लगता है इसको 1 to 2 days. इवन ट्यूबरकुलोसिस
सिम्टम्स appears आफ्टर 2 weeks ऑफ इन्फेक्शन। अगर आज आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आज आपको टीबी का डायग्नोसिस नहीं कर सकते आप, तो 2 या 3 हफ्ते के बाद में आपको पता चलेगा कि आपको टीबी हुआ है। तो दैट मीन्स it has a low virulence and the incubation period of this mycobacterial bacilli is around 2 or 3 weeks. So you cannot assess it, you cannot catch it quickly. Okay, so it has a low virulence. It can cause chronic disease, usually which is resistant to therapy. Disease is spread by droplet infection. Droplet infection मतलब क्या? आप यहाँ वहाँ पे वो स्पिटिंग एंड स्नीजिंग, जो आप स्नीज करते हो उसमें भी ड्रॉपलेट बाहर आता है स्नीज में। सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे स्पिटिंग करना, स्नीजिंग करना, ठीक है, या फिर खांसना, जैसे बात कर रहे हो आप। सो इफ यू आर इफ आई एम टॉकिंग, सो इन द while talking also, so at a particular distance, so there is a micro droplets of saliva and internal body fluids that is coming out while speaking also, that is known as a droplet. And if person is infected to a tuberculosis, and it can be spreaded by droplet infection. So principal cause of spreading of tuberculosis is a droplet infection. ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से स्प्रेड होता है। तभी तो कोरोना वायरस में क्या बोला है कि मास्क पहन के रखो, मास्क पहन के रखो, और जिसको हुआ है उसके उससे 2 गज की दूरी रखो, क्योंकि वो भी ड्रॉपलेट से फैलता है। सो दिस ट्यूबरकुलोसिस इज disease spread by droplet infection, and this droplet infected D droplet consists of infected pulmonary or laryngeal tuberculosis. Patient gets transmitted during sneezing, coughing, singing, और one simply talking. जैसे आप बात कर रहे हो, कोई गाना गा रहे हो, या फिर आपको स्नीज हो रहा है, या फिर कफ हो रहा है, या फिर स्पिट किया आपने कहाँ पे, सो ये वहां से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज इन द नेचर एंड दे रिमेन एयरबॉर्न फॉर फ्यू आवर्स। तो ये जो बैसिलाई होता है ट्यूबरकुलोसिस का, ये क्या है कि ये साइज उसका जो है स्मॉल होता है, और वो हवा में कुछ कुछ घंटे तक जिंदा रह सकता है। सो इट कैन लाइव इन द एयर फॉर फ्यू आवर, एयरबॉर्न फॉर फ्यू आवर्स। सो ट्यूबरकुलोसिस इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। ट्यूबरकुलोसिस डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए। तो ये भी याद रखो कि ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। उसका इट इज नोन एज अ किंग ऑफ डिसीज इन वेदास। द bacilli was discovered by Robert Koch, and it is caused by different variety of mycobacterium species like Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis. Okay, this has a low virulence. Now tuberculosis is difficult to treat because first reason क्या है, tubercular bacilli will grow slowly. ये जो tuberculosis वो slowly grow करता है, divides only once in a 1 or 2 days. 1-2 दिन में एक ही बार डिवाइड होता है। इन द मोस्ट ऑफ द, मतलब जहाँ पे फेवरेबल एनवायरमेंट है उसका, तभी जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तभी जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो वो डोरमेंट पोजीशन में जाएगा। ओके, लाइक ओपन कैविटरी पल्मोनरी लेशन, मतलब क्या है कि जैसे इन्फेक्शन हो गया आपको टीबी का पल्मोनरी, पहले तो इसमें इन्फेक्शन होता है कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी मतलब क्या, विंड पाइप जो होता है, ओके, विंड पाइप जो होता है पल्मोनरी, ठीक है, विंड पाइप जो होता है। सो जो आपका ट्रकिया होता है, ब्रोंकाइस होता है, ब्रोंकियल्स पे, तो उसमें जाके ये अटक जाएगा बैसिला, और वहां पे वो क्या करेगा, जहाँ पे जहाँ पे भी वो अटैच हुआ है वहां पे लेशन करेगा, मतलब जख्म करेगा, सो लेशन करेगा वहां पे, वो जाके इन्फेक्शन जैसे लेशन करता है उसके बाद में वहां पे ग्रो करना है। सो ट्यूबरकुलर बैसिला विल grow slowly, divide only in 1 or 2 days, once in 1 or 2 days when there is a favorable condition। वहां पे उसको सब फेवरेबल कंडीशन मिला, तभी जाके वो 1 या 2 दिन में सिर्फ एक बार डिवाइड करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली, दिस इज द वन रीजन, दैट्स हाउ व्हाई ट्यूबरकुलोसिस इज डिफिकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि ये रैपिडली डिवाइडिंग नहीं होता है। रैपिडली डिवाइडिंग जहाँ पे होता है डिवीजन, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स ज्यादा इफेक्टिव होता है। So if there is a rapid division of bacteria or causative organism, so in that case, when there is a rapid division of infecting organism, there is a more usefulness of antibiotic. But these bacilli will divide once only in 1 or 2 days. So that's why it is more difficult. And it also divides when there is a favorable condition, like open cavitary. Open cavitary मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि आपके लंग्स में, या फिर आपके ब्रोंकाइस में, या फिर आपके ट्रकिया में इसका इन्फेक्शन हो चुका है,
ठीक है, वैसे होना नहीं चाहिए आपको, लेकिन अगर मान लीजिए कि मान लेने में क्या दिक्कत है, तो जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, जहाँ पे वो बैक्टीरिया रिसाइड कर रहा है, जहाँ पे उसने कॉलोनी बनाया, तो वहां पे वो क्या करेगा, लेशन करेगा, जख्म करेगा, वुंड करेगा। सो अगर वो वुंड जो है, इफ दैट इज अ ओपन कैविटी, अगर वो ओपन है, so at that time only it will multiply. So open cavitary or pulmonary lesion, at that time it will multiply in the less favorable condition. जैसे होता है अगर कंडीशन उसका फेवरेबल नहीं है, लेस फेवरेबल कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस, दे मे बिकम मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट। अगर फेवरेबल कंडीशन होता है तो वहां पे वो ग्रो करेगा, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है उसके ग्रोइंग के लिए, सो व्हाट विल हैपन, दे विल बिकम डॉर्मेंट इन अ लेस फेवरेबल कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस, दे मे बिकम मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट। अगर वो क्या करेगा, वहां पे रहेगा, ठीक है, वहां पे रहेगा, लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बट वो जिंदा रहेगा। ओके, सो डॉर्मेंट नोन एज अ डॉर्मेंट पोजीशन, एंड इफ सच डॉर्मेंट bacilla is present in your lungs, so it can remain dormant for longer time, up to years. So it can remain dormant, okay, it can remain inactive in the lungs, आपके ब्लड में भी रह सकता है inactive, उसको बोलते हैं dormant, and it is also known as a persist. Okay, persist, yeah, persist, and patient or the patient which are having this dormant bacilli, they are known as a persisters, they are known as a persisters. So in case of favorable condition like open cavitary or pulmonary lesion, so it can multiply in once in 1 or 2 days. But if condition are non-favorable, then it may become metabolically dormant or metabolically inactive, known as a persist form host. Okay, जिसमें ये infection है उसको बोलते हैं persisters. And now only one drug is there which can effective against persister, that is known as a rifampin. Rifampin or rifampicin both are the same term, उसका synonym है, rifampin भी वही है, rifampicin भी वही है. Okay, only drug active against the persister known as a rifampicin. क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, okay, याद रखो. नाउ ये हो गए परसिस्टर, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो मल्टीप्लाई करेगा, नहीं है तो वो डोरमेंट हो जाएगा और वहां पे बैठा रहेगा। ओके, नाउ केसेशन और फाइब्रोसिस, केसेशन और फाइब्रोसिस, केसेशन और केसेशन एंड फाइब्रोसिस ब्लॉक्स द ब्लड वेसल सप्लाइंग टू द नेक्रोटिक एरिया। केसेशन एंड फाइब्रोसिस ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वहां पे पल्मोनरी में कोई उसने जख्म किया, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे जख्म ट्रीट करने के लिए बॉडी आपका एक इनएक्टिव प्रोटीन वहां पे लगा देगा, वो बोलते हैं फाइबर, फाइबर। ओके, सो व्हाइट कलर का व्हाइट व्हाइट लेशन आएगा आपको, दैट इज नोन एज केसेशन। ओके, व्हाइट व्हाइट लेशन नोन एज केसेशन, और वो फुल्ली डेवलप होने के बाद में उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। इन दैट केस बैक्टीरिया स्टिल इज इनसाइड, ओके, बट बॉडी हैज हील्ड दैट वुंड, जख्म जो हुआ है वो बॉडी ने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन बैक्टीरिया अंदर डोरमेंट पोजीशन में है, वो अभी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, लेकिन वो है, जिंदा रहता है वो वहाँ पे। तो इन केस ऑफ कैसेशंस एंड फाइब्रोसिस, सो इसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल सप्लाइंग टू ए नेक्रोटिक एरिया, मतलब जाके जख्म हुआ है वहाँ, विच रिजल्ट इन द लेस परमेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो ड्रग वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा, तो वहाँ पे ड्रग कैसे जाएगा, ड्रग तो ब्लड के थ्रू ही जा रहा है। सो इन द नेक्रोटिक एरिया विच कंसिस्ट ऑफ कैसेशन एंड फाइब्रोसिस, and in that area there is a block of blood vessels supplying to that narcotic area, and that result in the less permeability of drug to the infection site. Okay, and this is one of the second reason how why tuberculosis is difficult to treat. TB difficult क्यों है, उसके रीजन क्या क्या है, why tuberculosis is difficult to treat. Okay, ये क्यों है, फर्स्ट रीजन होगा कि वो जल्दी ग्रो नहीं करता, रैपिडली डिवाइडिंग नहीं है। दूसरा रीजन उसमें रैपिडली डिवाइडिंग नहीं है, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन में होता है तभी वो डिवाइड करता है, नहीं तो फिर वो डॉर्मेंट पोजीशन में जाता है, जिसको अपन बोलते हैं परसिस्ट फॉर्म ऑफ बेसिलाई, परसिस्ट फॉर्म ऑफ बेसिलाई। और जिसमें ये इन्फेक्शन है उसको बोलेंगे persisters, and these persisters are very difficult to treat again, बिकॉज इसमें रैपिडली डिवाइडिंग ग्रो नहीं कर रहा है बैक्टीरिया, उसमें वो शांत बैठा है, वहाँ पूरा मतलब जो होता है ना हाइबरनेशन में जाके बैठा है, तो उसमें सिर्फ एक ही ड्रग इफेक्टिव है, नोन एज रिफाम्पिसिन। दूसरा रीजन ये है कि डिफिकल्ट क्यूर ट्रीटमेंट के लिए इन केस ऑफ केसेशन एंड फाइब्रोसिस, जहाँ पे वो लेशंस किया है उसने, वहाँ पे जख्म किया है, नेक्रोसिस किया है, वहाँ पे क्या होता है कि बॉडी ट्राई टू हील दैट जख्म, बॉडी ट्राई टू हील दैट वुंड एंड डेवलप्स न्यू develops rigid fibers over there. So caseation and fibrosis blocks the
blood vessel supplying to necrotic area, and that's why drug is not permitted to that area. Okay, and that's why again it is very difficult to treat. Okay, then remember यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, इन केस ऑफ एच आई वी पेशेंट में सेकेंडरी इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है ट्यूबरकुलोसिस। सो जिसको एच है उसको ट्यूबरकुलोसिस होगा ही होगा 100%। Okay? So HIV patients are more vulnerable to severe form of Mycobacterium avium complex, Mycobacterium avium complex and TB। MAC मैक जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें दो चार ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे सब आता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोविस और दो तीन स्ट्रेन है। सो इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। सो इन केस ऑफ HIV पेशेंट दे आर मोर प्रोन टू माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन और टीबी इन्फेक्शन। तो जिनको एड्स है उनको टीबी होना ही होना, बिकॉज एड्स मतलब क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो इम्यूनो डिफिशियंसी होता है, इम्यूनिटी कम होता है उसको, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन जल्दी कैच करता है। नॉर्मली अपने को भी हो सकता है टीबी, इम्यूनिटी थोड़ा सा अच्छा रहता है तो ये इन्फेक्शन होता नहीं। फर्स्ट रीजन व्हाई टीबी इज डिफिकल्ट टू ट्रीट, दैट इज सीन वी हैव सीन। सेकंड रीजन व्हाई डिफिकल्ट टू ट्रीट वी हैव सीन। नाउ थर्ड रीजन, tubercle bacilli will remain viable and multiply even when ingested by macrophages। जैसे आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपकी जो डिफेंस सिस्टम होता है मैक्रोफेजेस, तो उनको पता चलता है कि इन्फेक्शन हो गया, तो मैक्रोफेजेस विल मूव एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, दे विल एनग्लब द इन्फेक्टेड सेल एंड दे विल डाइजेस्ट इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, वो मार देगा इन्फेक्शन को। ये ट्यूबरकल बैसिलाई इतना शातिर होता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई माइक्रोफेजेस ने उसको खा भी लिया, डाइजेस्ट भी किया, फिर भी वो जिंदा रहते हैं, तो इतना बदमाश थे, उसकी वजह से फिर इट इज नॉट इजी टू ट्रीट। सो ट्यूबरकुलर बैसिलाई रिमेन्स वाइबल एंड मल्टीप्लाई इवन व्हेन ingested by macrophages except isoniazid, rifampicin and pyrazinamide। other drugs are not penetrate macrophages। तो ये तीन ड्रग जो है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड पायरेसिनामाइड, ये तीन ड्रग आपको मैक्रोफेजेस में जाते हैं, बाकी ड्रग क्या है मैक्रोफेजेस में जाते नहीं है। So that's why again tuberculosis is not easy to treat. Why tuberculosis infection is difficult to treat? पहिला रिझन सांगितलंय तुम्हाला, तो रॅपिडली ग्रोईंग नाही आहे, एक एक किंवा दोन दिवसात एकदाच ग्रो होतो, त्यानंतर जर फेवरेबल एन्व्हायरमेंट असेल तरच ग्रो होतो, जर नसेल फेवरेबल एन्व्हायरमेंट डॉर्मंट होतो आणि पर्सिस्ट फॉर्म मध्ये राहतो। त्यानंतर जर तिथं ती जखम जर हील करण्याचा प्रयत्न केला बॉडीने, तर फायब्रोसिस होतं आणि तिथं ब्लड सप्लाय कमी होतो, त्यामुळे ड्रग पण तिथपर्यंत जात नाही आणि त्यामुळं परत डिफिकल्ट होतात ट्रीट करणं। आणि HIV पेशंट दे आर मोर वनरेबल फॉर द टीबी इन्फेक्शन। ठीक आहे, आणि जर ट्यूबरक्युलर बॅसिलाई रिमेन्स वायबल अँड मल्टिप्लाय इवन व्हेन इट इज इंजेस्टेड बाय मॅक्रोफेजेस। तर मॅक्रोफेजेस इथं बॉडीचे फर्स्ट लाईन डिफेन्स असतात, त्यांनी जर whenever there is infection macrophages will go and will try to digest that bacterial cell। टीबी का भी वही हाल होता है कि उसको भी डाइजेस्ट करता है, लेकिन वो डाइजेस्ट करने के बाद में जिंदा रहता है। ट्यूबरकुलर बैसिलाई will remain viable and multiply even when ingested by macrophages। In that case only three drugs are available: isoniazid, INH means isoniazid, rifampicin and pyrazinamide। other drug cannot penetrate into macrophages। clinical mycobacterial infection, क्लिनिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब क्या कि आपको टीबी हुआ है या नहीं, आपको माइकोबैक्टीरियल का इन्फेक्शन हुआ है नहीं, माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हुआ है नहीं, कब पता चलता है? क्लिनिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप्स 2 to 8 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन। 2 से लेके 8 वीक्स तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन हुआ है, तब तक वो पूरा आपके बॉडी में फैल चुका होगा। सो क्लिनिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप्स 2 to 8 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के बाद में 2 to 8 वीक्स के बाद में आपको मालूम हो सकता है कि आपको टीबी हुआ है। आफ्टर इन्फेक्शन झाल्यानंतर 2 ते 8 आठवड्यानंतर तुम्हाला त्याचे मॅनिफेस्टेशन दिसतील, त्याचे सिम्पटम्स दिसतील। सो मोस्ट इन्फेक्टेड पेशंट डेव्हलपमेंट ऑफ मॅनिफेस्टेशन दैट इज आफ्टर 2 to 8 वीक्स। ऑर्गेनिज्म डेवलप द रेजिस्टेंस टू द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है उसको उसका रेजिस्टेंस मिलता है उसको। दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट इजी टू ट्रीट, उसके लिए प्रॉपर थेरेपेटिक प्रोग्राम होता है, डॉट्स थेरेपी होती है, माउंटेन थेरेपी होती है, डॉट्स थेरेपी होती है, बहुत सारा ड्रग्स यूज करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन में ड्रग्स यूज करना पड़ता है। सो बिकॉज देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यू हैव टू यूज ट्यूबरकुलोसिस ड्रग और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इन अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक सिंगल ड्रग देयर शुड बी नॉट
देयर शुड नो यूज ऑफ सिंगल ड्रग। कौन सा भी ड्रग सिंगल यूज नहीं करना है, सिंगल ड्रग यूज किया तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है एंड दैट ड्रग विल बिकम इनहिबिटेड। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज्ड इन द ट्यूबरकुलोसिस। तो कुछ बुक्स में देयर आर 3 क्लासेस, कुछ बुक्स में सिर्फ 2 क्लासेस दिए। अभी ये केडी त्रिपाठी का क्लासिफिकेशन है। एज पर केडी त्रिपाठी, anti-tubercular drug, they are classified into two main categories. First one is a first line drugs or second one is a second line drug. First line drug मतलब पहले ये यूज करना है आपको। टीबी अगर हो गया है तो पहले ये ड्रग यूज करेंगे। कौन से? आइसोनियाजाइड, रिपम्पिन, पारिजेनामाइड, इथाम्बुटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसमें आप ये कोई ट्रिक बनता है तो बनाओ। इस्प्री बनता है, ESPRI, इस्प्री। इस्प्री, इस्प्री मतलब आइसोनियाजाइड, आर मतलब रिपम्पिसिन, पी मतलब पाइरोजेनामाइड, ई मतलब इथाम्बुटोल, एस मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। दीज आर नोन एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग, ये पहले यूज करना है। सेकंड लाइन ड्रग, दे आर नोन एज अ रिजर्व ड्रग, दे आर आल्सो नोन एज अ रिजर्व। रिजर्व होता है रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व ड्रग, ठीक है। सेकंड लाइन ड्रग दे आर नोन एज अ रिजर्व ड्रग। सो सेकंड लाइन ड्रग में कौन आता है? फर्स्ट फ्लोरोकिनोन्स, फ्लोरोकिनोन्स मतलब जो डीएनए गायरेज इनहिबिटर होता है, ठीक है, डीएनए गायरेज इनहिबिटर, टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर। सो ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, okay, ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ciprofloxacin. So these are the fluoroquinolones, second line drug. Other orally used drug, like in that case you have ethionamide, then proethionamide, ethionamide and proethionamide, cycloserine, terizidone, then para-aminosalicylic acid known as a PAS, rifabutin, thiazolone. So ये rifabutin जो है, rifabutin, it is nothing but the जो आपका रिपम्पिसिन है, रिपम्पिन या फिर रिपम्पिसिन, दोनों भी एक ही है। ओके, सो रिफाब्यूटिन एंड रिफापेंटिन, देयर आर टू ड्रग, रिफाब्यूटिन एंड रिफापेंटिन, दे आर नथिंग बट द डेरिवेटिव्स ऑफ योर रिपम्पिन। रिपम्पिन जो है उसका ही डेरिवेटिव है रिफाब्यूटिन, रिफाब्यूटिन एंड रिफापेंटिन, थायोएस्ट्राजोन। सो ये अदर ओरल सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग में ये आता है, ओके, इंजेक्टेबल में केनामाइसिन, अमिकासिन एंड कैप्रियोमाइसिन। याद रखो क्योंकि क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन 100% आता है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है, सेकंड लाइन कौन सा है, ठीक है, थर्ड लाइन कौन सा है। थर्ड लाइन याद रखो, जो इंजेक्टेबल सेकंड लाइन है उसको थर्ड लाइन भी बोलते हैं, कुछ बुक्स ने इसको थर्ड लाइन बोला है। यू हैव टू रिमेंबर दिस अगेन। ये 2-3 बार अपन क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, सो विल टेक दिस क्लासिफिकेशन अगेन इन द अपकमिंग स्लाइड्स। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है यहाँ पे। और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट लाइन ड्रग रिपम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पाइरेजिनामाइड, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर प्रीस बोल सकते हो, प्रीस, जैसे पी पाइरेमिथाइल, पी आर रिपम्पिसिन, आर ये प्रीस, PRISE, प्रेस बोल सकते हैं, प्रीस बोल सकते हैं, PRISE। सो P means pyrazinamide, R means rifampicin, isoniazide, S means streptomycin, E means ethambutol। तो दे आर द फर्स्ट लाइन ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग में ये देखो फ्लोरोक्विनोन जितने भी है उतने सेकंड लाइन ड्रग में आता है। तो ये इतना इस सिंपल है कि फ्लोरोक्विनोन मतलब ऑक्जेसिन, फ्लोक्सेसिन, ऑक्जेसिन जो भी है वो सेकंड लाइन ड्रग है। ओफ्लोक्सिन, लिवोफ्लोक्सिन, मोक्सीफ्लोक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सिन। देन ओरली, अदर ओरल सेकंड लाइन ड्रग, तो इथियोनामाइड और प्रोइथेनामाइड, ये दोनों एक ही है। इथियोनामाइड एंड प्रोइथेनामाइड दोनों एक ही है। साइक्लोसेरिन, ट्राइजिडोन, देन पैराअमीनोसैलिसिलिक एसिड, PAS, रिफाब्यूटिन एंड रिफापेंटिन। Rifabutin, this rifabutin and rifampicin, they are nothing but the similar or same antibiotic like rifampicin। rifampicin का ही डेरिवेटिव है। नेक्स्ट वन इज थायोएस्ट्राजोन, और जो इंजेक्टेबल है उसमें कैनामाइसिन है, अमिकासिन है एंड कैप्रियोमाइसिन है, और समटाइम्स दे आर नोन एज अ थर्ड लाइन एजेंट। इसको याद रखो। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टारगेट्स फॉर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। जैसे मान लीजिए कि ट्यूबरकुलर कैविटी है, ट्यूबरकुलर कैविटी है, ओके, सो ये इंट्रासेलुलर, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया बेसिलाई होंगे उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर बेसिलाई। ट्यूबरकुलर इंट्रासेलुलर है। मान लीजिए कि आपके ब्रोंकियल सेल है, ये क्या है, ब्रोंकियल सेल, उसमें क्या है कि इन्फेक्शन हो चुका है आपका ट्यूबरकुलर बेसिलस का। सो जो इंट्रासेलुलर है इनसाइड द pulmonary cell, they are known as a intracellular, okay, intracellular bacillus। So in case of intracellular tuberculosis infection, these drugs are effective: ethambutol, isoniazid and rifampin, ethambutol, isoniazid and rifampin, these are the intracellular
दे आर द इफेक्टिव अगेंस्ट द इंट्रासेलुलर बैसिलस, सेल के अंदर जो है। नाउ परसिस्टर मतलब क्या है, डोरमेंट में, मतलब ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, ये छुपे रुस्तम है, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में छुपे रुस्तम, ये मल्टीप्लाई नहीं होते, एक सिर्फ बैठे रहते हैं। सो इन केस ऑफ परसिस्टर रिपम्पिसिन इज ओनली ड्रग विच इज एक्टिव। नाउ ये हो गया इंट्रासेलुलर। अभी ये कुछ इन्फेक्शन जो है आपके, कुछ इन्फेक्शन जो है आपके ब्लड में भी रहता है, तो ब्लड में जो है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। सो इन केस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर these drug are effective. These drug are effective. Isoniazid, rifampicin and pyrazinamide. तो isoniazid, rifampicin and pyrazinamide. Isoniazid, rifampicin and pyrazinamide. So out of that isoniazid and rifampicin, ये जो दो है, so these drug are effective in the intracellular as well as extracellular bacilli. मैक्रोफेजेस में कौन इफेक्टिव है, मैक्रोफेजेस में स्ट्रेप्टोमाइसिन इज इफेक्टिव नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर, ये ब्लड में है ना एक्टिवली बॉडी। तो ये रिपम्पिसिन रिपम्पिसिन आइसोनियाजाइड पायरासिनामाइड, दे आर इफेक्टिव इन द बैसिला व्हिच आर डाइजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस, तो उसमें ये। सो दीज आर द डिफरेंट साइड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। नाउ अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, as I told you we are going to take 2-3 times classification. तो classification of anti-tubercular drug. So class first or first line drug. Class first or first line drug. So this may be depending upon the static or cidal activity. So these are also known as a standard drugs. Question already आ चुका है. These class 1 drug or first line drugs used for the tuberculosis, they are known as a standard drug. First line जो drug होते हैं उसको standard drug बोलते हैं. In that you are ये ड्रग, ये सब ड्रग उसमें फर्स्ट क्लास में आते हैं। उसमें भी अपन डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिसाइडल क्या है। सो बैक्टीरिसाइडल आर नथिंग बट आइसोनियाजाइड, रिपम्पिसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आर द बैक्टीरिसाइडल। आइसोनियाजाइड, रिपम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पायरेसिनामाइड, दे आर द बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक कौन है, दे विल ओनली प्रिवेंट द ग्रोथ, दे आर नोन एज इथाम्बुटोल एंड थायोआसिटाजोन। इथाम्बुटोल, थायोआसिटाजोन, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक याद रखना है। नहीं तो क्वेश्चन आता है उसका, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियोसाइडल या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक, ऐसा क्वेश्चन होता है। फिर फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ड्रग इज अ बैक्टीरियोसाइडल यूज्ड इन द ट्यूबरकुलोसिस, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। कार क्लास फर्स्ट ड्रग, दे आर नोन एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग और दे आर आल्सो नोन एज अ स्टैंडर्ड ड्रग, ठीक है, क्लास प्लस ड्रग। तो उसमें बैक्टीरियोसाइडल आता है आइसोनियाजाइड, रिपम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायरेसिनामाइड। बैक्टीरियोस्टैटिक आता है आपका इथाम्बुटोल, थायोआसिटाजोन। Then class second drug, they are known as second line drug. They are also known as a reserve drug. Reserve drug. इसमें भी बैक्टीरियोसाइडल कौन होता है, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, फ्लोरोकिनोन्स। और बैक्टीरियोस्टैटिक में आता है बैक्टीरियोस्टैटिक में आता है क्लोपेजिनामाइन, साइक्लोसेरिन, इथियो बैक्टीरियोस्टैटिक। तो क्लास फर्स्ट इज नोन एज स्टैंडर्ड ड्रग, क्लास सेकंड इज नोन एज अ रिजर्व ड्रग। अब कुछ बुक्स में थर्ड लाइन दिया है, थर्ड लाइन एजेंट क्या है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लोपेजामाइन एंड लिनेजोलिड। थर्ड लाइन में याद रखो क्लोपेजामाइन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, लिनेजोलिड, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लोपेजामाइन एंड लिनेजोलिड। तो ये थर्ड लाइन वाले एग्जांपल याद रखो। क्लासिफिकेशन के ऊपर कम से कम 2-4 बार क्वेश्चन आ चुका है इसके। सो फर्स्ट लाइन एजेंट स्टैंडर्ड ड्रग, उसमें बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल में क्या रहेगा, आइसोनियाजाइड, रिपम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायरेसिनामाइड। बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या रहेगा, इथाम्बुटोल, थायोआसिटाजोन। क्लास सेकंड इज आल्सो नोन एज अ रिजर्व ड्रग, उसमें बैक्टीरियोसाइडल क्या है, क्लास सेकंड और सेकंड लाइन। बैक्टीरियोसाइडल क्या है, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, फ्लोरोकिनोन्स। और बैक्टीरियोस्टैटिक में इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन एंड क्लोपेजामाइन। थर्ड लाइन में क्या है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लोपेजामाइन एंड लिनेजोलिन, ये थर्ड लाइन में। सेकंड लाइन थर्ड क्लास और सेकंड third class or third line drug. Now, single drug should not be used in the tuberculosis as this leads to development of resistance rapidly. कौन सा भी एक ड्रग लेके ट्रीटमेंट नहीं करना है आपको। अगर आपने कौन सा भी एक ड्रग लिया है, जैसे मान लीजिए कि आपने रिपम्पिसिन लिया है, सो यू bacilli will develop resistance to that. If you use single isoniazid, so isoniazid is exception, बाकी सभी ड्रग को रेजिस्टेंस आता है। That's why these drugs are used in the combination. कि कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं इसको, 1 2 3 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन बोल के यूज करते हैं, तभी जाके वो बैक्टीरिया मर जाता है, अदरवाइज बैसिलाई वो जिंदा रहता है। सिंगल ड्रग शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन द टीबी ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एज इट डेवलप्स द रेजिस्टेंस। एक्सेप्शन इज आइसोनियाजाइड। तो आइसोनियाजाइड को जो आइसोनियाजाइड आप यूज कर सकते हो सिंगल, बट आजकल उसको भी है, उसको भी रेजिस्टेंस हो चुका है। नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट,
आपको कैसे मालूम हो जाएगा कि आपको टीबी है? सो देयर इज वन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस नोन एज अ माउंटॉक्स टेस्ट। क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। माउंटॉक्स टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज डन बाय माउंटॉक्स टेस्ट। नाउ इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन वेदर अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद अ माइकोबैक्टीरियम और नॉट, कि आपको माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके चेक करने के लिए टेस्ट है कौन सा? माउंटॉक्स टेस्ट। माउंटॉक्स टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक प्रोटीन रहता है ट्यूबरकुलिन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी। इट इज वन प्रोटीन फ्रॉम ट्यूबरकुलर bacilli, so known as a tuberculin purified protein derivative. Now this protein is injected in the skin to check the individual's sensitivity to tuberculin protein. Positive test is indicated by local erythema after 48 to 75 hours. ये जो प्रोटीन होता है ट्यूबरकुलिन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये आपको डिसीज नहीं करेगा, ये आपको इन्फेक्शन नहीं करेगा। सेंसिटिव जो जिसमें इन्फेक्शन हो गया है इसमें ये क्या करेगा? इरिदिमा करेगा। जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है इसमें ये सूजन करेगा, वहाँ पे साइट ऑफ इंजेक्शन, यहाँ पे इंजेक्शन दिया है उसको वहाँ पे सूजन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। सो इफ टेस्ट इज पॉजिटिव दैट मींस यू आर इन्फेक्टेड विद द टीबी। माउंटॉक्स टेस्ट याद रखो, क्वेश्चन आ चुका है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इंडिविजुअल, हर एक ड्रग के बारे में देखेंगे। First one is nothing but the isoniazid. Okay, isoniazid. It is also known as isonicotinonic acid hydrazide. तो isonicotinonic acid hydrazide, तो it is a nicotinic acid derivative। क्या है ये? nicotinic acid derivative। यहाँ पे लिखा है isonicotinonic acid hydrazide, इसको बोलते हैं isoniazid। okay, isoniazid। so INH उसको बोलते हैं isoniazid और isonicotinonic acid hydrazide। ठीक है, निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव। It is a drug of choice for prophylaxis of tuberculosis. Drug of choice for prophylaxis of tuberculosis. Prophylaxis मतलब प्रिवेंशन, prophylaxis मतलब क्या? प्रिवेंशन। क्योर मतलब ट्रीटमेंट, मतलब क्योर। prophylaxis मतलब प्रिवेंशन। Drug of choice for prophylaxis of TB, that is isoniazid. It is the cheapest drug, most effective bactericidal, potent anti-tubercular drug. So unlike rifampicin, does not eliminate persister. तो ये जो है ये persister form of tuberculosis जो है उसमें यूजफुल नहीं है। सो दिस isoniazid is only effective in the live bacteria, extracellular as well as intracellular, but not effective in the persisters. persister मतलब डोरमेंट पोजीशन में जा गया बैक्टीरिया जाता है ना, उसको बोलते हैं persister, तो उसमें यूजफुल नहीं। So in case of persister only rifampicin is useful, कोई याद रखो। Now mechanism of action, mechanism of action, how it will act on a bacilli, tubercular bacilli. So there is a one very important cell wall component of bacteria, tubercular bacilli। जो mycobacterium tuberculosis bacillus होता है उसमें एक ये होता है सेल वॉल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, दैट इज नोन एज अ mycolic acid. So mycolic acid is a very important component of your tubercular bacillus, mycolic acid. So this isoniazid inhibit the mycolic acid synthesis in the tubercular bacilli, which is very important constituent for the mycobacterial cell wall. Suppression of the formation of DNA and RNA also causes suppression for the formation of DNA and RNA, which addition to this inhibits various oxidative mechanism. इसमें दो तीन मैकेनिज्म है याद रखो। ये माइकोलिक एसिड को सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, उसके बाद में डीएनए आरएनए का सप्रेशन भी करता है। सो दिस ड्रग इज अ extracellular as well as intracellular tuberculoside. ये this drug is extracellular as well as intracellular tuberculoside. Extracellular as well as intracellular मतलब ये ब्लड में भी ट्यूबरकुलोसिस के बैसिलाई को मारेगा, पल्मोनरी के सेल के अंदर का जो ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई है उसको भी मारेगा, एक्स्ट्रासेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। इट इज अ प्रो ड्रग। क्या है ये? प्रो ड्रग है। एज सच इट इज अ प्रो ड्रग, इट इज एक्टिवेटेड इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर जाके एक्टिवेट हो जाता है बाय एंजाइम कैटालेज पेरोक्सिडेज। कैटालेज पेरोक्सिडेज ये एंजाइम अंदर बॉडी में रहता है अपने, उसको मेटाबोलाइज करता है और वो एक्टिव ड्रग बनाता है, isonicotinonic acid hydrazide, isoniazid. Okay. Now absorption distribution. Absorption is good compared to both oral and IV routes. It can be penetrate into saliva, milk, CSF, pleural fluid. Intracellularly, macrophages and necrotic centers. It is mainly metabolized by acetylation reaction. Metabolism किससे होता है इसका? Acetylation reaction in the liver. Rapid acetylators and slow acetylators. जो acetylation reaction जिनमें कम होता है उनको बोलते हैं स्लो एस्टाइलेटर्स, और जिसमें रैपिड ज्यादा होता है एस्टाइलेशन रिएक्शन
उसको बोलते हैं रैपिड एस्टाइटिस। तो ये जो आइसोनियाजाइड है उसका एक इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसका एडवर्स इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी किस में ज्यादा होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी किस में ज्यादा होता है? स्लो एस्टाइलिटिस। जो स्लो एस्टाइलिटिस होते हैं उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी ज्यादा होता है। ओके, बिकॉज दिस ये जो आइसोनियाजाइड है it will decreases the absorption of your vitamin B6, that is a pyridoxine, and increases the excretion of pyridoxine. It will also interfere with the metabolism of pyridoxine. तो जो slow अस्टाइलिटिस है उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी ज्यादा होता है, और जो फास्ट अस्टाइलिट होते हैं रैपिड अस्टाइलिट उसमें उसमें लीवर डैमेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो आइसोनियाजाइड जो है उसका एक मेन एडवर्स इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एंड that is a mostly seen with the slow oscillators। रैपिड oscillator जो होते हैं उसमें हिपेटोटॉक्सिटी ज्यादा आता है। रैपिड oscillators फॉर एग्जांपल जापानीज पीपल, स्किमोस पीपल। स्लो oscillators जैसे इंडियंस। ओके, एक्सक्रीटेड एज अ कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन के साथ में कॉन्जुगेशन होता है उसका और रिमूव किया जाता है। दैट इज नोन एज आइसोनिकोटिल हाइड्राजोन। Isonicotinyl hydrazone, that is a conjugated product of your isoniazide। तो आइसोनियाजाइड का मेटाबॉलिज्म होता है डी एस्टाइलेशन, होता है उसका एस्टाइलेशन रिएक्शन, और वो बाद में उसका कॉन्जुगेशन होता है ग्लाइसिन के साथ में। सो ग्लाइसिन आइसोनिकोटिल हाइड्राजोन, ये दैट इज अ प्रोडक्ट। ओके, नाउ पेरिफेरल न्यूराइटिस इज कॉमन विद द स्लो एस्टाइलिटिस, मैंने बोला है आपको एडीआरस एडवर्स रिएक्शन। सो एलर्जिक रिएक्शंस लाइक ड्रग फीवर, स्किन इरप्शंस, lymphoadenopathy, jaundice, adverse reaction, CNS stimulation, ठीक है, psychiatric behavior, psychotic disturbances can cause ataxia, muscle twitching and paresthesia, stupor and toxic encephalopathy। ये है adverse reaction। मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन होता है इसका पेरिफेरल न्यूरोपैथी। दूसरा होता है आपका हिपेटोटॉक्सिटी। सो पेरिफेरल न्यूराइटिस और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो पेरिफेरल नर्व्स है उसको इन्फ्लेमेशन हो रहा है। anesthesia, paresthesia, burning and pain along with the sensory disturbances. That is the symptoms of peripheral neuropathy. Now, अगर peripheral neuropathy हो गया तो pyridoxine can be prevent this peripheral neuropathy. So that's why isoniazid के adverse effect रोकने के लिए pyridoxine देते हैं, विटामिन B6। क्वेश्चन इसके ऊपर कम से कम 2-3 बार आ चुका है। पेरिफेरल neuritis और peripheral neuropathy caused by isoniazid can be prevented by following vitamin। pyridoxine किसको बोलते हैं? विटामिन B6, so pyridoxine। So vitamin B6 can prevent the peripheral neuropathy caused by isoniazid, and another drug is there carboxide वगैरह, वो भी peripheral neuropathy करते हैं। So pyridoxine is used। क्वेश्चन आता है it can cause peripheral neuropathy as well as optic neuritis। ऑप्टिक नर्व जो है उसको भी डैमेज कर सकता है, एंड पेशेंट इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीन कलर एंड रेड कलर। तो ऑप्टिक नर्व जो है आपका, जो नर्व है आपका ऑप्टिक नर्व, उसको भी डैमेज करता है, उसको भी इन्फ्लेमेशन करता है। बिकॉज ऑफ दैट ऑप्टिक न्यूराइटिस पेशेंट इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड कलर एंड याद रखो ऑप्टिक न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, then it may cause atrophy, hepatitis is more common in the children। तो ये liver failure भी करेगा। Isoniazid can cause liver toxicity and should be monitored for it। Miscellaneous symptoms like dryness of mouth, epigastric distress, urinary retention in male, decrease in the metabolism should not be used in the combination। These are the adverse effect। तो adverse effect याद रखो, important है आपके, ठीक है, important adverse effect है। तो आपको कम से कम यहाँ पे आइसोनियाजाइड का नाम लिया तो 3 एडवर्स इफेक्ट एटलीस्ट आपको आना ही आना चाहिए। एक तो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरा है ऑप्टिक न्यूरोपैथी, तीसरा है आपका हिपेटोटॉक्सिटी। तो ऑप्टिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कैन बी reversed by giving pyridoxine hydrochloride, pyridoxine, vitamin B6, pyridoxine, and peripheral neuropathy is more common in a slow oscillators, क्योंकि ये आइसोनियाजाइड मेटाबॉलिज्म होता है फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म में, नोन एज एस्टाइलेशन रिएक्शन। तो एस्टाइलेशन रिएक्शन के लिए जो एंजाइम लगता है एसिटिल ट्रांसफरेज, तो वो दैट इज कोडेड बाय डिफरेंट जेनेटिक कोड। तो उसके बेसिस पे स्लो एस्टाइलेटर्स एंड रैपिड एस्टाइलेटर्स। रैपिड एस्टाइलेटर मींस those people which will metabolize the isoniazide quickly। रैपिड एस्टाइलेटर्स वो जल्दी मेटाबोलाइज करेंगे, एंड स्लो एस्टाइलेटर्स थोड़ा सा स्लो मेटाबोलाइज करेंगे। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज कॉमन इन द स्लो एस्टाइलेटर।
इफेक्टोक्सिटी इज कॉमन इन द फास्ट एस्टेलिट्स। याद रखो ये चीज आपको बहुत, बाकी ये चीज के लिए आपको पूरा दूसरा बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ के आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, देन ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब जो है ऑप्टिक, सो ऑप्टिक नर्व को भी आपका यहाँ पे इंफ्लेमेशन करेगा, बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड कलर एंड, याद रखो। देन हिपेटिक टॉक्सिटी, ये दो तीन टॉक्सिटी आपको मालूम होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या है, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैसिलस सेल वॉल। जो माइको माइकोबैक्टीरियम बैसिला है उसका सेल वॉल के सिंथेसिस के लिए माइकोलिक एसिड लगता है, वो ही इनहिबिट करता है सिंथेसिस को, आइसोनियासाइड। और डीएनए आरएनए का भी सप्रेशन कर देता है, ठीक है, डीएनए आरएनए का भी सप्रेशन कर देता है। ये प्रोड्रग होता है, प्रोड्रग है, इट इज अ प्रोड्रग। ये चार पांच पॉइंट आपको याद रखना है। अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया तो पीरियडोक्सिन देना है, ठीक है, याद रखो। क्वेश्चन